We all are going through a very difficult phase of our life, where most of us are locked inside of our homes. And this pandemic has affected almost every activity and every profession in the world. And research too is not untouched from it. The researchers are exposed to some unexpected kind of environment where most of the research activities uh, are confined to some online sources only, especially the data collection where some field surveys are required. That has become very next to impossible. We are not able to meet our respondent, we are not able to visit the labs, etc. So this present webinar aims at discussing various challenges and opportunities which are available to the researchers in this new normal. So I'm very sure that we all are going to be very benefited from this webinar. So again, on behalf of Commerce Department, I welcome you all in this session. As it has already been announced that uh, if you have any query, that you can drop your message in the Zoom chat box, and the speaker will answer your questions at the end of this session. So again, welcome you all. Thank you very much. Supriya. Thank you so much, sir, for such graceful welcome note. Well, today's webinar will be incomplete if I don't call the person who has been the pillar of strength and a guiding star for all of us. I'm talking about none other than our respected principal, sir, Dr. Shiv Kumar Sehdev. Sir, I request you to address the gathering. Thank you, Dr. H.K. Dangi, guest participants, my dear colleagues and dear students. I welcome you all in this morning. Good morning to all of you. I'm very happy that our Commerce Department has organized this webinar on a very relevant topic. हम तब से परेशान हैं कल एक वेबिनार वेबएक्स पे The topic of the webinar is very relevant, changing paradigm of research in COVID area. I'm sure that you all will enjoy, and we have a very resourceful person today with us, Dr. H.K. Dangi from the Department of Commerce, Delhi University. Thank you very much, sir. Now I hand over to Supriya Kama. Thank you, sir. Thank you, sir, for such motivating words. Now it's time to introduce to you all our resource person for the day, Dr. H.K. Dangi, sir. Sir is an associate professor in Department of Commerce, Delhi School of Economics, University of Delhi. He did his MBA from R.A. Podar Institute of Management, Jaipur, and doctorate from Faculty of Management Studies, University of Delhi. Sir is engaged in teaching, research, and consultancy since the year 2005. His area of research include business research and marketing analytics. He has also presented several research papers, and it has been published in numerous national and international journals. Sir has conducted more than 40 workshops on research methods, and he has also been a trainer for mid-career IFS officers, TANEX, and paramilitary officials. He has also assisted eminent bodies such as Indian Navy, TRI, and Ministry of Women and Child Development in their research studies. Sir, we are eagerly waiting to hear from you. I request you to start with your session. And thank you so much for giving us your time today. Am I audible? Yes, sir. Okay. So I am thankful to Honorable Principal Sir for giving this particular opportunity. And I am also grateful to Dr. Rajinder Singh. Actually, he is the person who actually brought me here. And honestly speaking, this is my first formal webinar. I've been on an online interaction for a long, especially in the COVID era. So thank you very much to Shivaji College for giving this particular wonderful opportunity to interact with the great minds and this participant through online mode in this testing time. And I'm also thankful to the organizers and their team, Supriya and Shweta and all the team at the back end who had actually made me comfortable by making sure that everything works and
everything is in place. Now, well, as far as the my viewpoint is concerned, I'm going to present in a such a manner that it is more of my perspective rather than it is being backed by any sort of empirical data or any published research. Whatever I'm going to present is essentially what do I think as an individual, what do I think as a student of research, what do I think as an academician. And I completely agree that you might have a complete divergent viewpoint on what I'm saying and what you are perceiving it to be. And I respect that. That's perfectly all right. But I would only suggest that, okay, as Supriya has very rightly said, and as Dr. Singh also mentioned very correctly, that in a half of the time, probably I'll share my views on certain issues, and probably remaining time we would like to take your question and then responding to your question rather than only one-sided view of what do I perceive about what is happening around and what would be possible consequences and what are the things which we can do. So I think this would work. First, I would be presenting my views, and then I would be inviting your questions. Some of the questions that has been very well planned by the organizers that they have already invited some of the question in the form of a Google Doc, and it has been shared to me. And I've noted down some of them, and probably I'll try to answer some of the question during my presentation itself. But in case if I'm not able to answer your query, please pardon me and please write it again, and I'll try my level best to present my viewpoint. And Supriya has been very generous in terms of introducing me that I have been associated with the workshop. But let me also accept one more thing, that my expertise has been primarily training people on the tool. And this is one area which is even new to me. And probably this is where I'm also looking for an opportunity where I would learn from the experience of the participant. Now, whatever I would be saying or whatever I would be sharing here is essentially my personal opinion. It's nowhere represents the department's perspective or university's perspective, because some of them might be driven by the policy of the university. So whatever I'm presenting in my individual capacity, and nowhere it should be taken as this is the viewpoint of a department or a University of Delhi's viewpoint. Well, I have divided my presentation in certain points. One, I'm going to present what is my view as an individual about COVID-19 crisis, how research in this COVID-19 has become important or unimportant. That's the next thing which I'm going to discuss. The major key takeaway or major discussion which I want to have it here is how the entire process of research, right from problem identification to reporting the result, is going to be altered, influenced, changed, impacted because of the COVID crisis. And the last part is how the ecosystem around us is going to respond and change in the context of the COVID-19. And then obviously I would take your questions and I'll try to answer. The first thing, and this is again I'm not an expert in a genetic science or genetic engineering, and I have a very little knowledge of COVID-19 or for that matter coronavirus. So I'm not going into detail about what is the evolution of this virus, when did the outbreak happen. So this is not something which I'm going to discuss about because that's not my core competency. But what I'm going to talk about is the whole narrative that this is we versus corona is somewhat misplaced. And again, that's my personal viewpoint. Somehow I'm not very comfortable with the terms which are being used by the mainstream media these days. इस युद्ध को हराना है, corona warriors, right? Third World War,
what are we talking about? Are we saying that we are going to fight against the nature? Or are we trying to say that it is a natural disaster? I don't subscribe to this particular view to a great extent. How can we blame nature, and how can we say that nature would be against us? Nature has been nourishing us, nature has been giving life to us, nature has been protecting us. Why nature would take our lives? And why we are blaming nature? So this whole narrative that human versus nature, as if corona, or in the form of corona, we are saying we are fighting with the nature. Rather, I would say this entire fight has become because we have tried to fight with the nature. We have not tried to coexist with the nature. We have tried to consume, right? हमारा जो पर्सपेक्टिव है कंजम्पशन का, कि नेचर को एक्सप्लॉइट करने का, we need to think कि कहीं यही तो कारण नहीं है कि कोरोना होने का, because in the magnitude of our scientific research, we forget the limits. We try to command and control the nature. हर चीज को हम चैलेंज करना शुरू कर दिया था. Forget about Earth. We wanted to conquer other planet. हम आर्टिफिशियल रेंज करने की सोच रहे थे, हम रेंज को रोकने की सोच रहे थे. We were trying to develop a genetic therapies, and everything we want to present in the form of analytics, and we wanted to predict so accurately everything. Is it a signal by the nature? Well, hold on. We as a human has also limitation, and this is a very good mirror. That way I would consider that we need to think, are we exploiting the nature, or are we in the harmony of the nature? And what our head of the department is a very renowned speaker, and of late I happened to listen to some of the webinars, Professor R.K. Singh. He has very beautifully quoted one thing. We as a country has been believing firmly in the what we call Shanti part. Om Dyom Shanti, Antariksha Shanti, Prithvi Shanti, Vanaspataya Shanti, Oshadaya Shanti. We have been the ones, we as a culture, we as a people of India has been appreciating. जिसको हम कहते हैं हम तो नेचर की पूजा कर रहे थे. हम तो शुरू से इस बात में बिलीव करते हैं कि there has to be peace, eternal peace, right? Be it औषधय, be it वनस्पति. तो कहीं ना कहीं वो इक्विलिब्रियम को हमने डिस्टर्ब करने की कोशिश करी है. कहीं ना कहीं हमने अपनी लिमिट को क्रॉस करा है. Somewhere we have forgot that final line, and as a result of which this crisis has happened. So even if we call it as a natural disaster or man-made disaster, to me as an individual, root of it is actually a man-made. Even if the symptom is through human, symptom is through natural, but it is somewhere man-made disaster. We have not respected the nature. We have unmindfully exhausted the resources. We breached that line of coexistence, and that is why that has happened. That's what my candid view on corona as a crisis. My daughter generally asks whenever I call her, she would say in a very innocent manner, Papa, when this would happen, when this would end. Probably her understanding of corona is slightly different from mine, and probably she also fed up with the lockdown and all those. That's why in a very innocent manner she asked when it is going to end. Well, honestly speaking, I have no answer to her question, and if you have this question, then even I have no answer to this question when it is going to end. But I know one thing for sure, from somewhere my deep down belief is it is going to end. When it is going to end, I am not an expert, I am not an epidemiologist,
right? So I cannot tell you precisely when it is going to end, but my understanding as a human being, anything which start is likely to be end. तो ये तो नहीं है कि ये परपेचुअल होगा. टाइम कितना लग जाएगा वो एक सब्जेक्टिव चीज है. दैट इज समथिंग विच इज स्पेकुलेटिव. किस तरह से फिनिश होगा ये भी मिस्टीरियस है. सडन फिनिश होगा या ग्रेजुअल होगा इसको कहने में भी अभी कोई nobody can say for sure. But I know one thing कि this is going to end. अब इसको देखने के लिए हम रहेंगे कि नहीं, लाइटर एंड पे मैं बोल रहा हूं. to end. This is going to end. किस तरह से खत्म होगा मुझे लगता है कि जितना जल्दी हम इस चीज को अप्रिशिएट कर लें, जितना जल्दी हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि हम इसके खिलाफ नहीं है, हमें इसके साथ मिलके इसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा. और देखिए द गवर्नमेंट्स वॉइस इज आल्सो चेंज. पीपल स्टार्टेड सेइंग वी हैव टू लिव विद द रियलिटी, वी हैव टू एक्सेप्ट. और अब एक स्कूल ऑफ थॉट तो ये भी आ रहा है कि हो सकता है कि कोई वैक्सीन आए ना, हो सकता है कि हमें इसके साथ जीना सीखना पड़े, हो सकता है कि हमारा लाइफ का एक नॉर्म बन जाए. सो जितना हम रिसेप्टिव होंगे, जितना हम नेचर के साथ अकोमोडेटिव होंगे, मुझे लगता है इसका एंड निकलेगा. और नेचर कोई ऐसे एंड नहीं करेगा. नेचर ऑब्वियसली किसी न किसी माध्यम से ही एंड करेगा. एंड व्हाट डू यू थिंक कि सो कॉल्ड कोरोना पे हमने जीत पा ली, तो ये क्या गारंटी कि कोविड-19 आया है तो कोविड 2020 नहीं आएगा, कोविड 2021 नहीं आएगा, राइट? और आज इस फॉर्म में है. ह्यूमन माइंड तो लिमिटेड है ना उसकी अंडरस्टैंडिंग. आज हम एक चीज के इजाद करते हैं वो म्यूटेट कर जाता है. अभी वो म्यूटेट कर रहा है तो अभी हम एक नई थियरी रोज बना रहे होते हैं एंड सडनली न्यू थिंग वुड कम अप. और हमें ये भी सोचना है कि अगर नेचर डिस्ट्रक्शन पे आ जाए तो नेचर हैज एन नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रक्टिंग. दे वोंट रिलाई ओनली ऑन a very low mortality rate of 3.8%. So please, my suggestion to this August audience is कि आप लोगों को भी इस बात पे सोचना पड़ेगा कि we have to cope up, we have to understand, we have to introspect where we are going wrong, and then we have to bridge a gap, and we have to coexist. I am nowhere saying कि आपको प्रिकॉशंस नहीं लेने होते हैं या आपको बचाना नहीं होता है. बिल्कुल करिए. even nature has to save. Nature would also save through this only. As some of them are saying that maybe this rationality that you should wear mask or you should wash your hand or this social distancing, ये भी तो शायद हो सकता है कि नेचर ही आपको एनलाइटन कर रहा हो, आपको बचाने के लिए सिग्नल्स आ रहे हो कि बॉस दिस इज हाउ यू नीड टू सेव. बिकॉज साइंस की अपनी लिमिटेशन है. तो कहीं ना कहीं नेचर तो हमें सेव करने की कोशिश कर ही रहा है. आई थिंक आई नो देयर मस्ट बी सम काउंटर क्वेश्चन और सम काउंटर नैरेटिव ऑन दिस, बट as I said earlier, we would take up question on this, but this is my viewpoint. Now research, as we said, there are several definitions of research, but one such common definition or perspective is logical and systematic analysis is research, and inquisitiveness of the human mind is termed as has led to researches. So research is essentially a scientific element. Research is always driven by logical analysis. तो कोविड के एरा में रिसर्च की इंपॉर्टेंस बढ़ी है या घटी है? जब राजेंद्र जी ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी और जब इस पे मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था कि व्हाट शुड आई से, रिसर्च की इंपॉर्टेंस ओवर टाइम इन कोविड एरा एक्चुअली इज इम्प्रूव, इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है? वेल, इफ आई लुक एट वन एंड, it has increased. Even a common man, or look at the beauty of this particular virus,
इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो आप आंख से नहीं देख सकते हो, साइंस की लैंग्वेज में स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, वो लिटरली आज सबकी जबान पर है और एवरीबडी इज सीकिंग द सॉल्यूशन थ्रू साइंस ओनली। सबका डिपेंडेंस साइंस में बढ़ गया, चाहे गवर्नमेंट हो या कॉमन मैन हो। आपको यही समझाया जा रहा है कि 20 सेकंड तक आपको हैंड रब करना है, अल्कोहल जो है उसकी वेट लेयर को डिस्ट्रप्शन कर देता है, या जो सोप है, तो सब लॉजिकल एनालिसिस से आ रहा है, सब एक्सपेरिमेंट के थ्रू आ रहा है, सब लैब के थ्रू आ रहा है। The whole concept of social distancing is also scientific, though very natural and logical, but scientific. Every time when you open up your mobile phone, you come up with a new theory. Every country is coming with a new perspective. ये कर्व कैसे फ्लैटन होगा? Every country is trying to develop a vaccine. Every country is trying to come up with a solution of this. The best of the best brains are working on this. So therefore research का कोविड के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंस तो बढ़ा है। पीपल आर गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू कॉमन मैन को भी। अब रोज इवन जो मेरे फ्रेंड्स है जो एजुकेशन लाइन में नहीं है, हार्डकोर बिजनेस लाइन में है, वो भी इसी बात पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि वैक्सीन आएगा तो उसका ट्रायल होगा, इसका उसका टाइम पीरियड होता है। तो एवरीबडी हैज स्टार्टेड थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च की इंपॉर्टेंस नो डाउट इसमें बढ़ी है कोविड के टाइम में। हियर so far I am talking only about research in general. I am not talking about the discipline which we belong to. मैं सोशल साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, रिसर्च इन जनरल की बात कर रहा हूँ, जिसको हम बोल सकते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ी है, मॉडल्स की इंपॉर्टेंस बढ़ी है। एवरीबडी इज कमिंग अप विद द न्यू मॉडल, सिंगापुर मॉडल, राइट, दिस मॉडल, दैट मॉडल, राइट। तो उसमें हम कह रहे हैं कि कब इस दिन में फ्लैटन होगा, कोई कह रहा है कि आपका लॉकडाउन का ऑप्टिमम टाइम पीरियड ये होना चाहिए। People are doing modeling with number of variables. तो वो तो हो ही रहा है। Research as such is getting lot of immense popularity, lots of acceptance, not amongst us, amongst the common men, amongst the common people. People started appreciating and understanding common terminology which are being used in a research parlance. तो वो तो बड़ा है। But at the same time, this is a classic case, classic example of failure. कि इतनी सालों से हम रिसर्च कर रहे हैं, इतनी हम प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की बातें कर रहे हैं, इतनी कस्टमाइज रिसर्च की बातें कर रहे हैं, इतनी रिसर्च कर रहे हैं, और ये इंस्टेंस होने के बाद 4 महीने हो गए, मोर देन 4 मंथ हो गए होंगे, रादर 5 महीने हो गए होंगे। वी आर क्लूलेस। बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स आर एट वर्क 24/7. Every permutation combination they are trying. सुपर से सुपर कंप्यूटर इस पे लगा हुआ है। हर आदमी, हर रिसर्चर, हर इलिटेस्ट ब्रेन इसको डिकोड करने में लगा हुआ है कि इसका सॉल्यूशन कुछ निकला है। बट अगर कॉमन मैन से पूछो, उसको कोई मतलब नहीं है कि इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है, इसका आरएनए क्या है, इसका डीएनए क्या है, मतलब इसका साइंटिफिक कंपोजिशन क्या है, कैसे ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, कैसे ये वायरुलेंट होता है, कैसे हर्ड इम्यूनिटी आती है। इन सब चीजों से एक कॉमन मैन को नहीं पता। वो तो इनोसेंटली मेरे बच्चे की तरह क्वेश्चन पूछ रहा है एक कॉमन मैन, साहब इसका इलाज क्या है, व्हाट इज द वे आउट। एंड वी एज a scientific community, so-called researcher, rational people have no play and answer for this. तो कहीं ना कहीं इस कोविड ने हमें आईना भी दिखाया है कि बॉस, रिसर्च इज ओके, बट व्हाट इज द पॉइंट व्हेन देयर इज नो रेलेवेंस ऑफ रिसर्च। अगर एप्लीकेबिलिटी नहीं हो, अब एक कॉमन मैन को क्या फर्क पड़ता है कि इस कोरोना वायरस का जो पार्टिकुलेट साइज है वो इतना है, ये तो मैन टू मैन ट्रांसफर हो रहा है, एयरबोर्न अभी नहीं है, अभी ये म्यूटेड हो सकता है इसकी से। वो तो सिंपल सा आपसे इनोसेंट क्वेश्चन पूछ रहा है साइंटिफिक कम्युनिटी से, हाउ डू आई सेव माई सेल्फ सर, व्हेन दिस वुड गोइंग टू एंड। एंड एज ए रिसर्चर
at least for now, nobody can answer, only speculation. Now, this is something which I consider is going to be very relevant according to me. और यहाँ पर मैं सोशल साइंस को कनेक्ट कर रहा हूँ. आप में से बहुत सारे लोग इस एंजाइटी में है, इस क्यूरोसिटी में है कि सोशल साइंस एज ए डोमेन किस तरह से अफेक्ट होगा. तो व्हाट आई हैव ट्राइड टू लिस्ट डाउन all the steps of research and how these steps are going to be affected in the COVID era. तो जो रिसर्च प्रॉब्लम आपकी है, जो आपने एमफिल पीएचडी में आइडेंटिफाई कर रखी है, या जो एज ए रिसर्चर, इंडिपेंडेंट रिसर्चर आप जिस एरिया पे काम कर रहे हैं, क्या वो रीडिफाइन होगी? और जो लोग नई रिसर्च प्रॉब्लम लेना चाहते हैं, तो क्या वो कोविड के कंटेक्स्ट में रीडिफाइन होगी? आंसर इज यस, रीडिफाइन करनी होगी. बट यहां पर मेरे को दोनों ग्रुप को अलग अलग थोड़ा सा सजेशन एज एन इंडिविजुअल. अभी क्या होगा कि देयर इज सो मच ऑब्सेशन ऑफ इंक्लूडिंग कोविड वर्ड इन एवरीथिंग, राइट? I was looking at some of the statistics for this particular lecture, and I came to know March alone, MIT की रिपोर्ट है, within 15 days I am being told, एक रिपोर्ट देख रहा था मैं, कितनी ऑथेंटिक है मुझे नहीं पता, 24,000 publication has took place on the कोरोना वायरस. 24,000. अभी मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि 24,000 कोरोना वायरस में पब्लिकेशन हुआ होगा तो इसकी क्या तो ऑथेंटिसिटी रही होगी, क्या तो ये पीयर रिव्यूड रहा होगा, और किस तरह से इसकी वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी रही होगी रिजल्ट की. बट एक मैड रश है, अंडरस्टेबल है, इट्स इन थिंग, राइट? एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट कोरोना. तो कुछ लोग जो हमारे फ्रेंड्स हैं, स्पेशली जो लिस्ट आपने, आई एम थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर, उन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया और उन्होंने लिस्ट मुझे एक शेयर करी. उस लिस्ट में मैं देख रहा था कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो हैं एमफिल पीएचडी कर रहे हैं, उनको मैं रिलेट कर पा रहा था. तो उनको भी ये टेम्पटेशन आएगा कि क्या जो मेरा टॉपिक है, क्या मुझे रीडिफाइन करने की जरूरत है कि सब अब तो कोरोना आ गया और अफेक्ट भी हो रहा है. माय सजेशन टू देम वुड बी कि आप अपना ओवर ऑब्सेस मत होइए. अगर आपने एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में एक रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी थी, तो आपके अपने रिजल्ट को कोरोना के लेंस से जरूर देखो, नो डाउट. आप अपने जब थीसिस का इंट्रोडक्शन पार्ट लिख रहे हो, जब आपने रिसर्च पेपर का इंट्रोडक्शन पार्ट लिख रहे हो, जब आप डेजर्टेशन लिख रहे हो, तो उसको बिल्कुल अपडेटेड लिखिए, नो डाउट अबाउट इट, बिल्कुल लिखिए. आप उसमें जरूर कोरोना का जिक्र करिए. बहुत सारे लोग मुझे फॉर्मली इनफॉर्मली पूछ रहे होते हैं कि क्या सर मेरे को अपनी थीसिस में अब ये लिखना चाहिए कि कोरोना की वजह से ये चेंजेस आ गए. माय आंसर इज यस, यू शुड राइट, बट टेक्निकली टाइटल को ट्विक मत करो, क्योंकि टाइटल तो आपका आज से 3 साल पहले डिफाइन हुआ होगा. तो कल के कोई ये क्वेश्चन कर सकता है, आई एम टॉकिंग अबाउट पीएचडीज एंड एमफिल्स, कि बॉस आपने तो टाइटल तब डिसाइड किया होगा ना, और उसमें तो उस समय तो कोरोना था ही नहीं. तो मेरा सजेशन ये है कि टाइटल को ट्वीक नहीं करना चाहिए जो मेरे एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स रिसर्च कर रहे हैं. पर नो डाउट अपना जब वो इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं डेजर्टेशन का, थीसिस का, या अपनी जो कंक्लूजन लिख रहे हैं, रिकमेंडेशन लिख रहे हैं, उसमें कोविड का एंगल ला सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट. तो उनको जरूर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए और ये इनवेरिएबली आएगा. और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जितने भी अब नए रिसर्च प्रपोजल्स आएंगे, अब जितनी भी नई प्रॉब्लम डेफिनेशंस आएंगी, मुझे इनहेरेंटली कहीं से गट फीलिंग आ रही है कि मुझे लगता है 99% टॉपिक जो होंगे उनमें ये कोविड वर्ड होगा. अगर टेक्स्ट माइनिंग करके देखेंगे तो कोविड वर्ड इनवेरिएबली आएगा, नो डाउट. ह्यूमन माइंड है, नेचुरल है, वहां आना ही है, राइट? क्योंकि यू कैन नॉट बी इग्नोरेंट टू द आउटसाइड वर्ल्ड. जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो बहुत सारे लोगों ने रिसर्च डिमोनेटाइजेशन पे करने की कोशिश करी. जब जीएसटी हुआ तो जीएसटी पे हुई. जब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ तो काफी टाइम तक ये
वेव चली थी इंडिया में, हमने देखा था 90s के बाद में कि जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी आप जो बोलते हो, काफी रिसर्च में हम देखते थे कि लोग एलपीजी या ग्लोबलाइजेशन की बात करते ही करते थे। तो मेरा स्पेकुलेशन है कि कोरोना की बात होनी ही होनी है, कोविड की बात होनी ही होनी है, इकोनॉमी को लेके, फाइनेंसेस को लेके, ह्यूमन रिसोर्सेस को लेके, मार्केटिंग को लेके, कोई डिसिप्लिन ऐसा नहीं होने वाला है जहां पर कोविड की बात नहीं आएगी। फिर भी मैं अपने फ्रेंड्स को, यंग फ्रेंड्स को एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन दूंगा कि बॉस, ओवर ऑब्सेस मत हो जाना, इतना कैरिड अवे मत हो जाना कि चाहे रेलेवेंट है या नहीं है जबरदस्ती फिट इन करो कोविड। अगर कोविड रेलेवेंट हो तो जरूर यूज करो, आपकी रिसर्च कंटेम्पररी होगी, नो डाउट अबाउट इट, रेलेवेंस बढ़ेगी, एप्लीकेबिलिटी बढ़ेगी, पर ऐसा ना हो कि मिसफिट लगे, ऐसा ना लगे कि जबरदस्ती घुसाया हुआ है, कोविड को कोई मतलब नहीं है फिर भी आप जो है कोविड को घुसा रहे हैं, वो अवॉइड करना। क्योंकि देखिए, रिसर्च प्रॉब्लम जब आप आइडेंटिफाई करते हैं उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है नोवेल्टी, एक होता है इनोवेटिवनेस। तो कोविड को इंक्लूड करना उस पैरामीटर पे बहुत हाई स्कोर करेगा। इट वुड बी वेरी इनोवेटिव, वेरी नो क्रिएटिव, वेरी कंटेम्पररी कि आपने कोविड के बारे में बात करी। और एक बात मत भूलिएगा, सोशल साइंस रिसर्च में देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। और बहुत सारे लोग मैंने देखा है बहुत टेम्पटेशन में आके प्री जीएसटी, पोस्ट जीएसटी, प्री कोविड, पोस्ट कोविड, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी रिसर्चेज में भी एक टर्म आने वाला है, प्री कोविड, पोस्ट कोविड। बट बॉस एक चीज मत भूलिएगा, प्री एंड पोस्ट को कंपेयर करने के लिए उसी टाइम फ्रेम का डेटा चाहिए होता है कंपैरिजन करने के लिए। तो क्या उतना डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा, उतना पेशेंस आपको होगा? नंबर वन। नंबर टू, पास्ट रिसर्चेस कितनी होंगी जिस भी डोमेन पे आप काम करना चाह रहे होंगे, अनटिल एंड अनलेस की कोई विजनरी लीडर हो या विजनरी रिसर्चर हो और उसने 2017-18 में ही सोच लिया हो कि कोविड 19 का इम्पैक्ट कुछ आने वाला है, उसके अलावा तो ज्यादातर आप और हम तो अभी लिखना शुरू करेंगे, 2020 में ही लिखना शुरू करेंगे। तो आपका जो होराइजन होगा लिटरेचर रिव्यू का वो तो बड़ा लिमिटेड होगा ना। जो मेथड्स होंगे वो तो इनोवेटिव करने पड़ेंगे। तो देयरफॉर यू हैव टू टेक ए बैलेंस व्यू। अगर आपको लगता है कि रेलेवेंट है, कोविड वर्ड टाइटल में इंक्लूड करना, प्रपोजल में इंक्लूड करना, साइनॉप्सिस में इंक्लूड करना, आइडियाज में इंक्लूड करना, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में इंक्लूड करना, प्लीज डू दैट, बट डोंट ओवरडू इट, राइट? जरूरत हो तो जरूर यूज करिए, पर ऐसा मिसफिट नहीं लगाइए, राइट? कि ऐसा नहीं है कि नहीं लग रहा है, काम की है, फिर भी आप जरूरत से ज्यादा उसको मिसयूज कर रहे हैं। और एक चीज बोलना चाहता हूं मैं कि कोविड अगर इतना एक्सटेंसिवली आपने यूज करा तो एक चैलेंज ये भी तो है कि आपका सारे जो फ्रेंड्स हैं, सारे कलीग्स हैं, नॉट इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब, हर कोई पैनिक बाइंग के बारे में जानना चाहता है, हर कोई कंज्यूमर बिहेवियर इन द एरा ऑफ कोविड के बारे में जानना चाहता है, हर कोई जो है फाइनेंशियल मार्केट्स कैसे इंपैक्ट होंगे कोविड से ये जानना चाहता है, न्यू एज वर्कफोर्स कैसी होगी हर कोई जानना चाहता है, प्रोडक्शन प्रोसेस इंडस्ट्री 4.0 इन द कोविड हर कोई जानना चाहता है। तो जब हर कोई जानना चाहता होगा तो आपको अपना रिसर्च प्रिपोजिशन प्लेस करते वक्त यूनिकनेस भी तो क्रिएट करनी पड़ेगी। आपका टॉपिक, आपका रिसर्च, आपका प्रपोजल दूसरों से अलग करना भी तो एक चैलेंज होगा। सो देयरफॉर research problem identification is bound to be changed during and post COVID era. That is my take as an individual. Research type, ये this is very close to my heart. मैं इसके बारे में बात कर रहा था। रिसर्च के वेरियस टाइप होते हैं, मैं इसको बहुत थियोरेटिकल लेक्चर नहीं बनाना चाहता हूँ, पर आप रेफर कर सकते हैं। रिसर्च के टाइप्स होते हैं जैसे फंडामेंटल रिसर्च होती है, अप्लाइड रिसर्च होती है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होती है, राइट, कंसेप्चुअल रिसर्च होती है, एम्पेरिकल रिसर्च होती है। आपने
जरूर सुना होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा इसके बारे में, पर जो रेलेवेंट है कोविड के कंटेक्स्ट में मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। मैं इसको जनरल रिसर्च मेथोडोलॉजी का लेक्चर नहीं बनाना चाहता। अभी तक हम ये कहते थे कि रिसर्चेस बेस्ड ऑन देयर पर्पसेस कैन बी क्लासिफाइड एज फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च, पर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कोविड, पोस्ट कोविड, एप्लीकेशन इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अभी इस प्रेजेंट कंटेक्स्ट में मुझे लग रहा है कि पीपल वुड वैल्यू रिसर्चेस विच आर अप्लाइड इन नेचर, which has got a high relevance। ऐसी रिसर्चेस जिनकी रेलेवेंस हाई है वो ज्यादा अप्रिशिएट की जाएगी एज कंपेयर टू द थियोरेटिकल रिसर्चेस, राइट। तो टाइमिंग मुझे ऐसा लगता है कि अप्लाइड रिसर्चेस की रेलेवेंस अब ज्यादा होने वाली है एज कंपेयर टू प्योर और फंडामेंटल रिसर्चेस। ये मेरी अपनी गट फीलिंग है। इसी तरह से क्रॉस सेक्शनल डेटा की बजाय या क्रॉस सेक्शनल रिसर्च की बजाय लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च की इंपॉर्टेंस अब ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक तो मैं बड़ा क्लियर कट आपको फोर्स ही कर पा रहा हूं, अब जितनी भी स्टडी हुआ करा करेगी उसमें नया डेफिनेशन हो जाएगा एसी एंड बीसी, आफ्टर कोरोना एंड बिफोर कोरोना। हर रिसर्च में जब डेटा लिया जाएगा तो ये देखा जाएगा कि प्री कोरोना, पोस्ट कोरोना, प्री कोरोना, ड्यूरिंग कोरोना एंड पोस्ट कोरोना, और प्री कोविड, ड्यूरिंग कोविड, पोस्ट कोविड। तो जब फेजेस डिवाइड हो जाएंगे तो लोग उम्मीद करेंगे कि बहुत ये इंप्रूवमेंट आया है, राइट। ये कैसे पता चलेगा? अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई रेफरेंस डेटा हो। तो जो भी चीज आप प्रूव करना चाहेंगे कि ये कोविड की वजह से ये चीज इंपैक्ट हुई है, क्योंकि ये दो वर्ड बड़े यूज और मिसयूज होने वाले वाले, मुझे मेरी गट फीलिंग ये रह रही है कि हर टाइटल का शुरुआत ऐसी होगी, इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन, इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन। ऐसा पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में साउंड बोर्ड कर रहा है कि जितने भी टाइटल आगे हम पढ़ने वाले हैं ये वर्ड तो बड़ा कॉमन आने वाला है, इम्पैक्ट ऑफ। तो मेरा जैसा आदमी यही पूछेगा कि बॉस इम्पैक्ट करना चाह रहे हो तो पहले ये बताओ कि पहले क्या था, प्री क्या था और पोस्ट क्या था। तो अब लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन की रेलेवेंस बढ़ने वाली है। आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चीजों को जानना होगा। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम को जानने की थोड़ी सी जो मुझे लगता है रेलेवेंस है वो टाइम बीइंग थोड़ी कम होगी। रिसर्च के जो दूसरे टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वालिटेटिव रिसर्च की इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली है एज कंपेयर टू क्वांटिटेटिव, राइट। रियल इंसाइट, रियल कॉजेस, राइट। जो जो ये फिनोमिनन है इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च का पर्सपेक्टिव मेरी गट फीलिंग है कि बढ़ने वाली। तो वन आई सेड अप्लाइड रिसर्च बढ़ेगी, सेकंड आई सेड लॉन्गिट्यूडनल एलिमेंट बाय एंड लार्ज आता हुआ नजर आ रहा है मुझे। थर्ड, मुझे लग रहा है कि रिसर्चेस अब मिक्स मेथड अपना अडॉप्ट करेगी, प्योरली क्वांटिटेटिव पे रिलाई नहीं कर पाएगी। इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट इज research approach. Namely, there are two approaches in our social science. I'm sure you might have heard की इंडक्टिव अप्रोच, एक होता है डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच में फ्रेंड्स क्या होता है, एक जनरल प्रीमाइस होता है और उसके बाद आप सोशल रियलिटी को ऑब्जर्व करते हो। एक होता है सोशल रियलिटी को आप पहले ऑब्जर्व कर रहे हो और एक फिर कोई जनरल प्रीमाइस बना रहे होते हो। कोविड ने डिडक्टिव अप्रोच को एक तरह से क्वेश्चन पे ही लाके रख दिया। कौन सी थियरी सोशल डिस्टेंसिंग को समझाती थी, आप बताइए। मैंने तो वर्ड सोशल डिस्टेंसिंग कोविड के बाद ही सुना, नया वर्ड ही इजाद हो गया, नए नए वर्ड सुनने को आए, क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंसिंग। आप मुझे बताइए कि कौन सी थियरी थी इस पे। तो बस थियरी तो अब ऑब्जर्व करके बनाई जाएगी, एनवायरमेंट को सी करके बनाई जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि रिसर्च की इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, आप कोई चीज ऑब्जर्व करते हो और फिर थियरी बनाते हो, जैसा कि अभी हो रहा है, राइट। डबलिंग पीरियड देख रहे हो,
चाइना में कितने केसेस में डबल हुए थे कितने दिन में, यूएस में कर्व कैसे जा रहा है, इटली में कैसे जा रहा है, स्पेन में कैसे जा रहा है, और उसके बाद एक प्रीमाइस बना रहे हो ना, जितने भी मॉडल बना रहे हो उसका प्रीमाइस क्या है, पहले डेटा देख रहे हो फिर मॉडल बना रहे हो। मॉडल बना के तो डेटा नहीं देख रहे हो ना, क्योंकि ये तो फिनोमिनन ही नया आ गया, सारा ही कुछ नया है, नाम ही इसका नोवल है, राइट। तो इसका मतलब डिडक्शन तो कुछ काम आएगा नहीं। अब इंडक्टिव अप्रोचेस जो होंगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है रिसर्च में, ऐसा मुझे लगता है। रिसर्च फिलोसफीज, जो 3 तरह की रिसर्च फिलोसफी जनरली हम डिफाइन कर रहे होते हैं, पॉजिटिविज्म, इंटरप्रिटिज्म एंड रियलिज्म। बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, पर आपको पॉजिटिविज्म का जो प्रीमाइस है वो बेसिकली प्रीमाइस क्या है कि देयर एग्जिस्ट अ सब्जेक्टिव रियलिटी, दिस एंटायर वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ अनऑब्जर्वेबल फैक्ट्स and therefore it is not possible to completely understand the observable facts, और देख ही नहीं सकते। और पॉजिटिविज्म तो ये मान के चलता था कि एवरीथिंग इज प्रिडिक्टेबल, एवरीथिंग इज ऑब्जर्वेबल, जिसके हमारे जैसे जो है सो कॉल्ड एनालिटिक्स के लोग थे वो हर चीज को प्रिडिक्ट करने में लगे हुए थे कि ब्रेड खरीदोगे तो बटर भी खरीदोगे, राइट, ये खरीदोगे तो वो भी खरीदोगे, मोबाइल खरीदोगे तो चार्जर भी खरीदोगे। अब हमसे कोई पूछे कि बॉस ये बता देते आपकी प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स लगा के कि कोविड-19 होने वाला है, वी आर क्लूलेस, राइट। इतना हेवी इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है एनालिटिक्स में, पर पॉजिटिविज्म काम ही नहीं आ रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ टाइम तक जो हमारे शिफ्ट हो गया था डेटा ड्रिवन की तरफ, हर चीज बहुत इंपेरिसिज्म व्यू पॉइंट से देखने की, हर कुछ हम पॉजिटिविस्टिक व्यू पॉइंट से देख रहे थे। सोशल साइंस की तो अपनी ब्यूटी यही है कि इंटरप्रिटेटिव व्यू हो, इंटरप्रिटिज्म हो। हम कहीं उससे दूर जो होते जा रहे थे थोड़े टाइम से ये रिसर्च में, ये हाई टाइम है। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वेव वापस आएगी और अब जो कॉम्बिनेशन होगा वो पॉजिटिविज्म और इंटरप्रिटिज्म का होगा, राइट। इन अदर वर्ड्स मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिसर्च अब जो है वो मिक्स मेथड्स की तरफ फॉलो ज्यादा होगी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का कॉम्बिनेशन अब और ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। रिसर्च डिजाइन मेनली 3 या 4 तरह की रिसर्च डिजाइन होती है, ज्यादातर हम लोग डिस्कस कर ही रहे होते हैं उसमें, कि जैसे एक्सप्लोरेटरी टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन, डिस्क्रिप्टिव टाइप, एक्सपेरिमेंटल, मॉडलिंग। पर मैं जो अभी यहाँ पर फोकस करना चाहता हूँ कोविड के एरा में, मेरे को ऐसा लगता है कि एक्सपेरिमेंटल टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन बहुत रेलेवेंट होने वाली है। अब आप जो भी, जैसा मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल में बता रहा था, उसमें आप हमेशा आपको ये एविडेंस देना पड़ेगा कि ये जो ट्रीटमेंट आपने यूज किया है, जो एक्सटर्नस वेरिएबल आपने यूज किया है, जो इन्फ्लुएंसिंग वेरिएबल आपने यूज किया है, ये जो इम्पैक्ट आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल में या जो चेंज आ रहा है, ये इसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से है, और बाकी चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होने वाला है कि जब ये कोविड का कंटेक्स्ट चल रहा है तो बाकी चीजों को आइसोलेट करना बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा। जब भी आप ये कहेंगे कि कोविड के दौरान, राइट, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं जिससे आप मेरी बात को अप्रिशिएट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आप ये बोले कि नंबर ऑफ केसेस जो आउटब्रेक हुए हैं लॉकडाउन के दौरान, उसका अगर मैं डेटा ले लूं और डे वाइज लॉकडाउन का टाइम ले लूं, तो मैं ये कंक्लूड करना चाहूं कि लॉकडाउन इफेक्टिव हुआ या नहीं हुआ, और इसमें बहुत सारे फैक्टर होंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिसको रिसर्चर कंट्रोल वेरिएबल या एक्सटर्नस वेरिएबल बोलते हैं। तो ये एक्सटर्नस वेरिएबल कहने को तो आसान होते हैं, बट सही मायने में इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपकी जो रिसर्च डिजाइन होगी फ्रेंड्स, चाहे आप पैनल डेटा पे काम करते हो, चाहे आप क्रॉस सेक्शनल डेटा पे काम करते हो, चाहे आप टाइम सीरीज डेटा पे काम करते हो, पर कहीं ना कहीं आपकी जो रिसर्च डिजाइन होगी वो अफेक्ट होने वाली है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। क्योंकि बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन यूज करेंगे, वो ये कहेंगे कि कोविड से पहले ऐसा होता था, कोविड के दौरान ऐसा हुआ, कोविड के बाद में ऐसा हुआ, या जिसको हम बोलते हैं प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट विद कंट्रोल ग्रुप, विदाउट कंट्रोल ग्रुप, ओनली पोस्ट पोस्ट। इस तरह की
डिजाइन्स अब और ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगी, क्योंकि इस तरह की जो डिजाइन होती है ना, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, ये एक तरह से इंटरसेक्शन होता है सोशल साइंस और साइंटिफिक रिसर्चेस का, ये इंटरसेक्शन भी होता है, और उसका टाइम अब वापस आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि वो रेलेवेंट होने वाली है। डेटा कलेक्शन, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें थे अंडरस्टेबल कि सर अब आप ये बताइए, आप लोगों ने क्वेश्चन में भी पूछा कि सर अब तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट कैसे होगा, फील्ड वर्क कैसे होगा, बहुत क्वेरी है, बहुत एंजाइटी है। इस पे मेरा व्यू पॉइंट ये है कि ये तो ऑब्वियस है कि फील्ड वर्क अफेक्ट होने वाला है, प्राइमरी डेटा अफेक्ट होने वाला है, नो डाउट अबाउट इट। पर मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट ये है थोड़ा सा कि द वे प्राइमरी डेटा हैज बीन कैप्चर्ड, ये तो वैसे ही अफेक्ट हो रहा था। आप मुझे ये बताइए, एक्सेप्ट पायलट टेस्टिंग, कितने लोग हम जनरली ऑफलाइन सर्वे कर रहे होते हैं सोशल साइंस में? ज्यादातर तो मैं यही देख रहा होता हूँ कि आप लोग तो गूगल फॉर्म ही शेयर कर रहे होते हो, सर्वे मंकीज और कोई ऐप ही यूज कर रहे होते हो। तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन अफेक्ट होगा, ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि इफेक्ट नहीं होगा, पर इसका स्केल इतना हाई होगा, ये मुझे डाउटफुल है, क्योंकि न्यू प्रॉब्लम्स ऑफर न्यू सॉल्यूशन, न्यू, राइट? तो जब आपको पता है कि प्राइमरी डेटा नहीं कलेक्ट हो पा रहा है, तो आप कोई ना कोई मीन्स आइडेंटिफाई करोगे जिसकी तरह से आप जो है प्राइमरी डेटा को दूसरे मेथड से आप कैप्चर करने की कोशिश करोगे, टेक्नोलॉजी के थ्रू कैप्चर करने की कोशिश करोगे, उसकी तरफ रीच करने की कोशिश करोगे आप डेटा प्राइमरी। तो ये कहना कि प्राइमरी डेटा खत्म हो जाएगा या कम यूज होगा, ये मेरे को कम डाइजेस्ट होता है। एटलीस्ट आई डोंट थिंक सो कि दिस वुड बी लाइक दिस। हाँ, ये जरूर चेंज होगा कि आई एज ए रिसर्चर नीड टू अडेप्ट, अपडेट होना होगा। अगर मैं टेक्नोलॉजी के साथ कन्वर्जेंट नहीं हूं, तो मुझे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि बॉस रिसर्च करना है तो आई हैव टू बी कॉम्पिटेंट, आई हैव टू कंपाइल कंप्लायंस विद द न्यू एज टेक्नोलॉजी। तो अब मुझे बहुत सारे, हम एज ए टीचर, एज ए कम्युनिटी, हमने सीखा है ना, कहाँ हमें पता था जूम, राइट, गूगल मीट, हैंग आउट, माइक्रोसॉफ्ट टीम। मुझे नहीं लगता है कि मैंने तो कोविड से पहले इसका 10% या 5% भी यूज किया होगा, पर आज एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हैं। तो इसी तरह से प्राइमरी डेटा जैसे आप कलेक्ट करते आ रहे थे, वो तो चेंज होना ही है, नो डाउट अबाउट इट। हाँ, अफेक्ट क्या आएगा? अफेक्ट आएगा रूरल एरिया में, जहां पर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, जहां पे मोबाइल पेनिट्रेशन नहीं है, जहां पर फील्ड वर्क एक्सटेंसिव होता था, वहां पर थोड़े टाइम के लिए डिफिकल्टीज फेस की जाएगी, नो डाउट अबाउट इट, राइट? वो आएगा, अफेक्ट आएगा। इसी तरह से प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की वजह से, फेस टू फेस डेटा कलेक्ट करने से, एक जो ऑथेंटिसिटी थी, रिलायबिलिटी थी डेटा की, और जो आपका जिस तरह से पहले जो कॉन्फिडेंस प्राइमरी डेटा में होता था, वो थोड़ा सा तो क्वेश्चन होगा, नो डाउट अबाउट इट, आई एग्री, मैं इस पे डिनाई नहीं कर रहा हूं, बट वी हैव टू अडेप्ट टू द चेंज। हमें सीखना होगा कि ये सिचुएशन है, इसमें अगर प्राइमरी डेटा नहीं कलेक्ट किया जा सकता है फेस टू फेस, तो व्हाट इज एन ऑल्टरनेटिव वे जिससे हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर पाए, और थोड़ा सा सेकेंडरी डेटा की तरफ शिफ्ट होना ही पड़ेगा, नो डाउट अबाउट इट, राइट? तो ये एक पॉसिबल चैलेंज में एग्री करता हूं, पर ऐसा नहीं है कि ये एब्सोल्यूट चैलेंज है। दिस इज अ माइनर रोड ब्लॉक which would be taken care in due course of time. हम एज ए रिसर्चर इवॉल्व होंगे। डेटा एनालिसिस एंड अप्रोचेस, again this would again be affected the way data has been analyzed. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि
डेटा एनालिसिस के मेथड चेंज हो जाएंगे। टी टेस्ट जैसे करते थे, अब कहेंगे कोविड के बाद टी टेस्ट नहीं यूज करेंगे, अब हम कॉफी टेस्ट यूज करेंगे। ऐसा नहीं है, आई एम नॉट सेइंग दैट, राइट, कि हम काई स्क्वायर नहीं यूज करेंगे, अब कुछ और कोई और स्क्वायर यूज करेंगे। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, काई स्क्वायर यूज नहीं करेंगे, चाइनीज स्क्वायर यूज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको न्यू एज टूल्स एंड टेक्निक वो अडेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब काफी कुछ डेटा कैप्चरिंग आपका ऑनलाइन होने वाला है। तो बहुत सारे टूल जो कि आपके ऑनलाइन से कॉम्पेटेबल हैं, राइट, एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम ट्विटर, एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम फेसबुक, रियल टाइम डेटा। अब देखिए, जब आप मैन्युअल डेटा कलेक्ट करते थे तो थोड़ा सा, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट थोड़ा सा वहां पर ना चेक्स एंड बैलेंसेस पुअर होते थे, पता ही नहीं चलता था कि ये रिसर्चर ने भरा है, ये रिसर्चर ने खुद भरा है, राइट, या भरवाया है। तो ये क्रेडिटेबिलिटी हमेशा इंडियन कंटेक्स्ट में, विद नो ऑफेंसेस मेंट, हमेशा रहती थी। अब ये वाला एंगल जो है थोड़ा सा फिर से रिवाइज होने वाला है। अब आपका सारा डेटा रियल टाइम होगा, ऑनलाइन होगा, राइट, तो सारा रियल टाइम आपके डेटा अवेलेबल होंगे। तो रियल टाइम डेटा के जो टूल्स एंड टेक्निक होंगे वो थोड़े डिफरेंट होंगे। द वे इमेजेस आर बीइंग प्रोसेस्ड, द वे टेक्स्ट डेटा इज बीइंग प्रोसेस्ड, द वे ऑडियो डेटा इज बीइंग प्रोसेस्ड, द वे वीडियो डेटा इज बीइंग प्रोसेस्ड, ये सारा चीजें अब टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होगी। और एज ए रिसर्चर आपको इनके साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा, आपको नई नई चीजें सीखनी ही पड़ेगी। You have to be comfortable with R, you have to be comfortable with Python, you have to be comfortable with the tools and techniques। वो तो अदरवाइज भी होना था, इसकी वजह से इम्प्यूटस मिल गया। जो चीज बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर डिजिटल एजुकेशन को बहुत जबरदस्त वो क्या कहते हैं स्टार्ट मिला है, जो चीज 10 साल में होती वो 2 महीने में हो गई। पर मेरा दूसरा व्यू पॉइंट है कि क्या डिजिटाइजेशन होने के लिए कोरोना का इम्पैक्ट है या कोरोना ही जरूरी है? आंसर इज नो। डिजिटाइजेशन तो वैसे भी हो रहा था, ये तो इवॉल्विंग प्रोसेस है। क्या हम डिजिटाइजेशन अदरवाइज नहीं हो रहे थे? ऑफलाइन से ऑनलाइन नहीं हो रहे थे? वैसे ही हो रहे थे। तो रिसर्च का भी जो ऑफलाइन टू ऑनलाइन मोड है ये तो वैसे ही नेचुरल है। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो गई। द स्पीड एट विच दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैज हैपेंड has increased in an exponential manner. This I agree. But ये natural process है, ये तो होना ही था। रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट में अब जो भी रिपोर्ट आपकी असेस की जाएगी उसमें ये देखा जाएगा कि आप रिकमेंडेशन पार्ट में क्या लिख रहे हो। आपकी ये जो सारी रिसर्च है उसका निचोड़ रेलेवेंस के टर्म में क्या है। आपकी रिसर्च से क्या मार्केटियर बेनिफिट होगा, क्या बिजनेसमैन बेनिफिट होगा, क्या आप इस तरह की सिचुएशन को फोर्सी करके कोई सॉल्यूशन ऑफर कर रहे हो या प्रॉब्लम में एक नई प्रॉब्लम ही जोड़ रहे हो। प्रॉब्लम में नई प्रॉब्लम जोड़ने वाले तो हजारों रिसर्चर है आज की डेट में, राइट। प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ढूंढने वालों की रेलेवेंस मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ने वाली है। तो ये मेरे कुछ व्यू पॉइंट है जो कि सोशल साइंस रिसर्च में होंगे। ये मेरी लास्ट स्लाइड है जिसमें मैंने ये कहने की कोशिश करी है, एंड वी आर ऑलमोस्ट ऑन द टाइम। जैसा मुझे राजेंद्र जी ने बताया था कि मुझे मेरे पास 1 hour 15 minutes है, तो ऑलमोस्ट 1 hour के करीब हो गया है। अनदर 5-10 minutes आई वुड लाइक टू डिवोट, और फिर उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन लेना चाहूंगा। इकोसिस्टम कैसे चेंज होगा? मेरे ख्याल से बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स का इसमें डिफरेंट व्यू पॉइंट भी हो सकता है और इसमें इंटरेस्ट भी हो सकता है। आउटलुक ऑफ फंडिंग एजेंसी इज चेंजिंग। अभी पीछे ही कोई मुझे फोन कर रहा था 2 days बैक एंड इन्फॉर्म मी कि सर ICSSR has come up with a request for proposal with a special focus on corona। कुछ 8 महीने से लेके 1 साल के प्रोजेक्ट्स उन्होंने लॉन्च करे हैं, पर थीम ये है कि कोरोना बेस्ड होना चाहिए। इवन प्राइम मिनिस्टर इन हिज एड्रेस हैज अनाउंस सेवरल टाइम कि हमें इंडिजिनस सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है, स्टार्टअप को आगे आने की जरूरत है
और हमारे जो साइंटिस्ट है उसको कोरोना पे रिसर्च करने की जरूरत है। तो सोशल साइंस में भी कोरोना पे फोकस बढ़ने वाला है। तो जो लोग प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो लोग माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट, नए नए टर्मिनोलॉजी है, राइट, यूजीसी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, डीएसटी प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को अलाइन करना पड़ेगा कोरोना का, क्योंकि ये दिस इज गोइंग टू बी इन डिमांड फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स। मुझे ऐसा लगता है इट इज गोइंग टू स्टे। तो आप जो भी रिसर्च प्रॉब्लम सोच रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स जो सुन रहे हैं मुझे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आप रिसर्च प्रॉब्लम सोच रहे हैं फंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें एलिमेंट ऑफ कोरोना को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि सुटेबिलिटी आपके रिसर्च प्रोजेक्ट की ज्यादा होगी। फिर जो मैंने यंग रिसर्चर को राय दी वो आपको भी देना चाहूंगा, सीजन रिसर्चर को। जस्ट बिकॉज फंडिंग एजेंसी कोरोना पे चाहती है, इसलिए ऐसा नहीं कि जरूरत है या नहीं है, जेल कर रहा है या नहीं कर रहा है, जबरदस्ती कोरोना घुसाओ, वो ठीक नहीं रहेगा, वो पकड़ में आ जाता है। तो वो थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है। अभी जितनी भी रिसर्च मेथोडोलॉजी की वर्कशॉप होने वाली है, मुझे लगता है आगे आगे के कुछ टाइम के लिए तो EFDPs हुआ करेगी। फिजिकल एफडीपीज तो मुझे लग रहा है कि इवन ही ये कोरोना इमीडिएटली खत्म हो भी जाता है, कोई मिरेकल हो जाए, तब भी मुझे लगता है कि अगले 6 महीने 1 साल मिनिमम फिजिकल एफडीपीज मुझे बहुत मिनिस्क्यूल लग रही है, बहुत कम लग रही है। ये एफडीपीज का ही ट्रेंड चलने वाला है। इफ आई हैव लिबर्टी टू यूज द वर्ड, फैशन आने वाला है EFDPs का, राइट, जैसे कि कुछ हद तक वेबिनार्स का आ रहा है। तो उसी तरह से EFDPs इज एन इन थिंग, इज इन ट्रेंड। तो जो भी मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि बॉस अब हमें टूल टेक्निक डिस्टेंस मोड से सीखनी पड़ेगी, ऑनलाइन मोड से सीखनी पड़ेगी। और जो रिसोर्स पर्सन है उनको भी अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा इस न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ, इस नई रियलिटी के साथ, कि अब हमें एज ए EFDPs के थ्रू ही डिलीवर करना पड़ेगा फॉर सम गुड टाइम। ये जो कॉन्फ्रेंसेस का जो सिस्टम है, ये भी मुझे लगता है कि थोड़े टाइम तक ई के फॉर्म में ही होगा। वेब कॉन्फ्रेंसेस ही हुआ करेंगी, ई कॉन्फ्रेंसेस ही हुआ करेंगी। सो दिस इज दैट इज टू ये शेयरिंग एंड जो ये नेटवर्क डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट था थ्रू कॉन्फ्रेंसेस, वो भी अब वर्चुअली होगा। फिजिकल होने का इमीडिएट मुझे लगता है ये जो रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी वेब कॉन्फ्रेंसेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा मुझे अंदर से फील हो रहा है, एंड क्वाइट लॉजिकल ऑल्सो। एपिडेमिक करिकुलम बहुत अपडेट होने वाला है। जितने भी आपके सिलेबसेस हैं उनमें कहीं ना कहीं एलिमेंट आने वाला है इन द चेंजिंग रियलिटी ऑफ कोरोना, रिसर्च प्रोसेस द कंटेक्स्ट ऑफ कोरोना, मार्केटिंग मैनेजमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोरोना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन द लेंस ऑफ कोरोना। तो ये जो लेंस ऑफ कोरोना है ये हर जगह लगने वाला है। तो एकेडमिक करिकुलम जो रिसर्च से रिलेटेड है वो भी अपडेट होगा, ऐसा मुझे लगता है इमीडिएटली। So I would like to sum up, friends, and I would say I mentioned few things, and I would like to reiterate. I have not been able to see your questions so far because मैंने अभी chat box में नहीं जा पाया, but I could see there are 37, 38 comments or questions. So obviously मेरे organizers मुझे help करेंगे उनको sum up करने में, पर मैं उसको जाने बिना ही अपनी कुछ व्यू पॉइंट या समराइज कर रहा हूं। These are purely my gut feeling and personal perception, and you have a complete freedom to have a diagonally opposite viewpoint, and I would respect and appreciate that. I am not saying this is the solution. I'm just saying it is one of the solutions, right? These are my viewpoint, and you might not agree with all of them or with some of them. Number one. Number two, then I try to give you
my own perspective that we have to leave this narrative of human versus nature. It has to be human and nature. Forget about versus. We won't be able to fight with nature. Nature is mother. Why mother would fight with the child? So it is human and nature, not human versus nature. Right? Third thing which I said, the entire research process, right from identification of research problem till result analysis is likely to be redefined in the context of corona. And this ecosystem around corona is also likely to be evolved, also likely to be changed, and we need to be prepared. With these words, I am again extremely thankful to the organizers, and I was being told that within few hours, Professor Singh texted me and said, "Sir, what are your views? We're already in a receipt of 350 plus registration." I got scared. I said, "Sir, I'm in a habit of training 30, 40 people." Then he convinced in his own way. After all, he's a politician. So he convinced in his own way. Don't kid, nobody's going to look at you. You are looking at yourself. So he convinced me, but I said, please stop at 350 or 400. So he has been kind enough. He stopped registration at 350, 400. But in a way, to the person like me, that you show such a great enthusiasm and you registered for this webinar and you consider it worthwhile to listen to me apart from getting that e-certificate. So I'm extremely thankful to all the participants. And any given point of time, I was observing 290 plus participants were there. So such a precious time of 290 participants at one go. I am grateful to them. I acknowledge that they have been patient enough. They have been grateful enough to listen to my views. And I am again thankful to Dr. Singh, his entire team, and respected principal sir to consider me for this particular webinar. With these words, now I would like to hand it over to our anchors to moderate the next the session subsequently. Well, thank you so much, sir. Just one word which comes to my mind is wow. Generally, in terms of research, we are like, we have this notion ki thoda boring hoga and all, but this was so informative and it was so interesting. And I can see the chat box is totally loaded with all the compliments to you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for such a wonderful session. And you actually made us aware about various dimensions of research, especially now with this COVID thing which has come up. I'm sure we all will think today that, yes, now research is going to change in various ways. Thank you so much, sir. Thank you once again. Now we'll be starting with our question answer session. And there are few queries. There are many compliments and few queries. So I will now request my colleague, Ms. Hamanpreet Kaur, to please take over for the question answer session. Thank you, Supriya ma'am. Good afternoon, sir. This was really an insightful session. Most of our questions have already been answered by you. There are few questions regarding, there is one question by Dr. Manika Jain. It is regarding customer experience. She said customer experience has emerged as the next big thing in the era of marketing research. So how do you see the future experience of research in COVID era? Will it be reduced to the virtual experiences only? Correct. Amanpreet, would you like to answer, a question first, or you would like to list all the question and then I would choose to answer? What is the best way out? One is you keep mentioning the question, I just note it down. And
I answer at one go, so there is no repetition. Or this mode, if it works, then also it is I'm comfortably. I'm okay with both the mode. So you want me to answer right away? Whatever is comfortable for you, we can follow that. The only purpose was if there is a repetitive question that can be eliminated. But anyway, you take care of those part. That Yes. if a question has been already asked, so the same question is not being asked by some other participant. Okay, So, sure, sir. Monica ji, thank you very much for taking me to this particular aspect, which I forget to mention in my lecture. And that's a very pertinent question which you asked. Experience is so personal. And the whole gamut of this customer experience was based on what do I feel, right? The whole notion, whole construct, the whole notion of this customer experience was based on aesthetic part, was based on tangible part. When I go to a store, how do I feel? When somebody interacts, how do I feel? Right? When somebody listen to my query, how do I feel? तो ये जो कस्टमर एक्सपीरियंस जो रिसर्च में कंस्ट्रक्ट था, राइट, और इस पे बहुत रिसर्चेज हो चुकी है. 2005 से लेके 2020 के बीच में कस्टमर एक्सपीरियंस पे फ्लडेड हो गई है रिसर्चेज. 200 ऑड पेपर्स तो मैं खुद देख चुका हूं जो कि कस्टमर एक्सपीरियंस के कंस्ट्रक्ट को डिफाइन कर रहे हैं. तो वो ओवरनाइट चेंज होने वाला है. आई अप्रिशिएट एंड एग्री विद व्हाट मोनिका जी हैज सेड. ये जो कस्टमर एक्सपीरियंस का जो पूरा प्रीमाइस था, राइट, ये जितने भी थियरीज और मॉडल थे वो सब री एग्जामिन होने वाले हैं. अब तो वर्ड वर्चुअल एक्सपीरियंस आने ही आना वाला है. नोबडी कैन डिनाई दैट. तो टाइम बीइंग it would be virtual customer experience. Marketer has to agree. पर मोनिका जी मैं आपको ये बात बोलूंगा कि ये जो वर्चुअल या डिजिटल एक्सपीरियंस की बात हो रही है, इज इट ए न्यू थिंग? ये तो पहले ही शुरू हो गया था. ऑलरेडी आप वर्चुअल एक्सपीरियंस या डिजिटल एक्सपीरियंस की बात तो हम ऑलरेडी रिसर्च में काम करना शुरू कर चुके थे. इससे वो इम्प्यूटस मिल गया, नंबर वन, वो किक स्टार्ट मिल गया. और नंबर टू, फिजिकल एक्सपीरियंस थोड़े टाइम के लिए भी होल्ड पे चला गया. अभी तो भैया पहले हम स्टोर में जाके ये सोचते थे कि फिजिकल एक्सपीरियंस करें, अब तो स्टोर में जाना एक सजा समझते हैं कि कहीं कोरोना नहीं लेके आ जाए. तो ये सो कॉल्ड हमारे सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट्स, मेगा मार्केट है, ये तो अब डर का कारण बन गया कि भैया यहाँ ना जाना पड़े तो अच्छा है. तो फिजिकल डायमेंशन ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस is going to be halted for some time. ये थोड़े टाइम के लिए रिप्लेस होगी. अब क्या ये परमानेंट रिप्लेस हो जाएगी? ये मुझे डाउट है. ऐसा नहीं होगा. थोड़े टाइम के लिए ये बैकसीट पे आएगी, पर लॉन्ग टर्म में जो मेरा अनुमान है मोनिका जी, ये कोएग्जिस्ट करेगी, ये सब्स्टिट्यूट नहीं होगी. फिजिकल एक्सपीरियंस वुड हैव इट्स ओन रेलेवेंस, वुड हैव इट्स ओन ब्यूटी. आप इसको मैं ऑफ द कोट कर रहा हूं, पर एग्जांपल के तौर पे अगर समझाना चाहूं तो हम कितना ऑनलाइन टीचिंग यूज कर रहे हैं आजकल. और मुझे तो अभी भी ये लग रहा है कि कोविड के बाद ऐसा थोड़ा ना हो जाएगा कि ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाएंगे. इट वुड बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, 60-40, 50-50, कुछ ना कुछ फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा. पर ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ वर्चुअल एक्सपीरियंस रहेगा. टाइम बीइंग वर्चुअल एक्सपीरियंस फ्रंट सीट पे होगा, फिजिकल एक्सपीरियंस बैक सीट पे होगा. सारी थियरीज जो आपने लिटरेचर रिव्यू करा होगा मोनिका जी, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसको वर्चुअल के एंगल से देखना पड़ेगा, राइट. तो ये तो आपका डिफरेंस आने वाला है. आई एम श्योर कि मैंने मोनिका जी के क्वेश्चन को आंसर किया. It was by Dr. Manika Jain. So most of the questions are related to literature review. Many of the researchers are asking regarding how to access the literature because not much literature is available on the free platforms. Well,
what should I say? I should not take an administrative position because you have not invited me as a administrative position. You have invited me as a research person. देखिए, लिटरेचर रिव्यू के दो डायमेंशन है. एक है बहुत माइक्रोस्कोपिक व्यू जो कि ज्यादातर मेरे यंग फ्रेंड्स को बोदर कर रहा है कि सर अभी तक तो आरटीएल जाते थे, अभी तक तो आराम से कंप्यूटर के सेंटर में जाके डीयू के डेटाबेस को आराम से एक्सेस कर लेते थे. अब सडनली सर ये कोरोना के टाइम पे लिटरेचर रिव्यू हैज बिकम ए चैलेंज. आई वुड से ये टेम्पररी चैलेंज तो है, पर टेम्पररी चैलेंज या ये जो नई प्रॉब्लम है ये नए सॉल्यूशन भी ऑफर कर रही है. क्योंकि आई एम बीइंग टोल्ड कि जितना भी लाइब्रेरी का रिसर्च मटेरियल है वो वीपीएन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होना स्टार्ट हो गया है. बहुत सारी इंस्टीट्यूशन जो हैं, जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, एज ए मैटर ऑफ कॉज, एज ए मैटर ऑफ ह्यूमैनिटी, उन्होंने बहुत सारे रिसोर्सेज का फ्री एक्सेस अभी अवेलेबल कराना शुरू कर दिया है. इवन आई एम बीइंग टोल्ड कि हार्वर्ड is offering certain courses free of cost to its participant. तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये जो एपेक्स या इलीट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास ये रिपोजिटरीज हैं, टाइम बीइंग के लिए आपको पर्सनल नेटवर्क पे अवेलेबल कराएंगी. थोड़ा सा आप अभी जो फ्री एक्सेस जहां पर अवेलेबल है उसके थ्रू आप रिसोर्स को रिट्रीव करिए. और ये जो वीपीएन प्लेटफॉर्म्स है उसकी क्या ऑपरेशनल डिफिकल्टी है मैं ये नहीं बता सकता क्योंकि मैंने इन दिनों इमीडिएटली यूज नहीं किया है. बट एवरी नाउ एंड देन देयर इज अ मेल सेइंग दैट वी हैव पुट एवरीथिंग ऑन द डीयूएलएस वर्चुअल प्लेटफॉर्म. तो वहां से आप पेपर एक्सेस कर पा रहे हैं. जितनी भी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो आपको असिस्ट कर ही रही हैं. और इस पर्टिकुलर क्राइसिस में तो आप अगर कोई ओपन सोर्स के थ्रू भी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो उसको आप एक्सेस करिए. तो आप वेज हैं, वेज इवॉल्व भी हो रहे हैं. जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन सेंसिटाइज हो रही है वो अपने रिसोर्सेज फ्रीली अवेलेबल भी करा रही है. जितने भी अच्छे जनरल्स हैं, रेप्यूटेड जनरल्स हैं, दे आर ऑल्सो नो, उनके ऊपर भी प्रेशर है. वो भी कह रहे हैं कि भाई एक तरफ everybody is suffering, at least you should not charge for time being. तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी they are coming forward. तो आने वाले टाइम में कुछ ऐसा सॉल्यूशन आएगा. को क्रिएशन की बात बनेगी, नेटवर्किंग के थ्रू रिसोर्सेज एक्सेसिबल होंगे, पर होगा तो भी एक्सेस थ्रू ऑनलाइन ही. पर उसमें तो मुझे कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं नजर आता है फ्रेंड्स. अभी भी तो आप ऑनलाइन ही रिसोर्स को एक्सेस कर रहे होते हो. अंतर इतना ही है कि जेपीटी स्टॉल की चाय नहीं मिल पा रही है और फ्रेंड्स का गपशप पार्टी नहीं मिल पा रही है. आप और आपका कंप्यूटर लिटरेचर रिव्यू कर रहा है. यही एक थोड़ा सा चैलेंज मुझे भी टाइम बीइंग लग रहा है. बाकी तो चीजें इवॉल्व हो रही है और मुझे लगता है कि और इवॉल्व हो जाएगी. तो यू शुड नॉट वरी अबाउट इट. आई वुड से दिस थिंग. Thank you, sir. Sir, there is one question regarding stock markets. It is by Dr. Vanita Chadda, ma'am. She is saying that now should the study be divided into pre-COVID, during the COVID, and after the COVID era? थैंक यू वनीता जी. राजेंद्र जी के बहुत अच्छे फैन थे हमारे डॉक्टर अमित सिंह जी. वो फाइनेंशियल और स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट है, तो मेरे ख्याल से वो अच्छा सा इसको आंसर कर पाएंगे. बट वनीता जी, आई विल नॉट शाई अवे फ्रॉम द क्वेश्चन. आपने रिसर्च के पर्सपेक्टिव से पूछा है. वनीता जी, ये तो कंफर्म है, ये मैंने अपने लेक्चर में भी बार बार हाईलाइट किया था कि आप बेशक से रिसर्च किसी भी कंटेक्स्ट में करिए, ये एलिमेंट आपको इनकॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा प्री एंड पोस्ट कोविड. नहीं तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि ये वास्तव में कोविड की वजह से हुआ है. तो जो एक कंट्रोल वेरिएबल की तरफ प्री कोविड डेटा है वो तभी हो पाएगा वनीता जी जब आप प्री एंड पोस्ट ले. तो माय सजेशन एज ए रिसर्चर इज यू शुड एक्चुअली, अगर पॉसिबल है, जो कि आपके केस में मुझे लग रहा है आराम से पॉसिबल है, प्री एंड पोस्ट कोविड लेना चाहिए. यस, यू शुड. तभी उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी.
Thank you, sir. I hope she gets the answer. Then there is one question by Mahindra Kumar Verma, sir. He's saying, what is the new perspective for new researchers in case of research in CSR? Research in CSR. Yes, sir. Well, अभी ये तो बाउंसर की तरह आया है हरमन जी, but what I can immediately think, Mahendra ji, कि CSR as a discipline is going to be largely affected and benefited because of this particular unfortunate thing. Because इस पूरे क्राइसिस के दौरान स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये जो सारा जो मैड रश है, जो ये सारा हमारी जो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच थी, जो सोसाइटी को भूल के हम अपने अपने पर्सनल मटेरियलिस्टिक बेनिफिट की बात कर रहे थे, वो तो क्वेश्चन आ ही गया पूरा. इट हैज बीन अ बिग क्वेश्चन मार्क. तो CSR एज ए डिसिप्लिन is going to see a huge change as far as I understand. बहुत सारा डायमेंशन निकल के आएगा. कंपनीज को प्रोएक्टिवली इन चीजों में सोचना पड़ेगा. बहुत सारी कंपनीज को अपना CSR एक्टिविटीज कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन में लगाने का एक पर्सपेक्टिव मिलेगा. कैसे हैंड हाइजीन को प्रमोट किया जाए सोसाइटी में, इसमें बहुत सारा कॉर्पोरेट सेक्टर आगे आएगा. मास्क प्रोडक्शन जैसे हो रहा है, फेशियल मास्क की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कंपनीज कुछ टाइम के लिए फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करेगी. तो मतलब कोविड की क्राइसिस की वजह से ये जितना भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना अभी, अब कंपनीज को सीरियसली टेकअप करेगी. तो CSR का ये एस्पेक्ट, ये डायमेंशन बहुत जबरदस्त चेंज होने वाला है. नंबर 1. नंबर 2, जो CSR की फिलोसफी थी उसको भी बूस्ट मिलने वाला है कि अगर सोसाइटी एट अ लार्ज आपसे अगर बेनिफिट नहीं हो रही है तो फिर आपके ऐसे डेवलपमेंट का क्या फायदा. मैंने तो शुरुआत इसी से करी थी महेंद्र जी. मैंने तो ये कहा था कि अगर आप सोसाइटी को साथ नहीं लेके चल पाओगे तो ये तो किसी ना किसी फॉर्म में साथ में आएगा ही आएगा. तो ये जो CSR की थ्योरी है, इसको तो मुझे लगता है कि और पावर मिलेगी और स्ट्रेंथ मिलेगी कि मोनोटोनिक या अनमाइंडफुल डेवलपमेंट आप करते रहोगे और सोसाइटी के बारे में या एनवायरनमेंट के बारे में नहीं सोचोगे तो नहीं होने वाला है. तो मुझे लगता है दोनों एस्पेक्ट चेंज होंगे महेंद्र जी. CSR एक्टिविटीज चेंज होने वाली है और CSR की थियरीज भी बहुत चेंज होने वाली है. CSR थियरीज में मुझे बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है, तो आई वुड लाइक टू बी एक्सक्यूज फॉर दैट, क्योंकि उसका इतना ज्यादा डोमेन नॉलेज मुझे नहीं है. आई मे बी एक्सक्यूज फॉर दैट. ज्यादा आप अगर कहेंगे तो मैं कुछ रिट्रीव करके आपको ईमेल के थ्रू आंसर करने की कोशिश कर सकता. Thank you, sir. Sir, there is one question. Excuse me, sir. Harman? Yes, sir. Yes, sir. Please. Sir, this is not related to the queries of Dr. Mahinder, but I want to share my observation during this COVID area regarding CSR itself. Please. Almost, yes, sir. Almost all of us know that in this new Companies Act, it has been mandatory. It's been made mandatory that some categories of companies have to contribute 2% of their average profit of last 3 years towards the CSR. So, usme, during COVID, we have seen that many of the companies are contributing to the PM Cares Fund, right? And they are advertising it or they are flaunting it as the that they have made something towards the society. But my observation is that this is not out of the responsibility, but it is out of compulsion. Because 2% उनको अपने प्रॉफिट के एवरेज का 3 साल के प्रॉफिट के एवरेज का कंट्रीब्यूट करना ही करना है, और जो पीएम केयर्स फंड का जो कंट्रीब्यूशन है वो उसके लिए क्वालिफाई करता है. बट जो इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारी जो कंपनीज है वो सारी उसी की फंड के अंदर ही कंट्रीब्यूट कर रही हैं. तो इस ऑब्जर्वेशन को भी CSR के कंटेक्स्ट में थोड़ा सा देखा जा सकता है कि वो वाकई में CSR उसको मानोगे या नहीं. So that is just an observation. No, I agree. Very true observations.
Yes, Arman. Next question, please. So we have been receiving many questions. So if you spare me some time, I would like to take 2 or 3 questions more. या बिकॉज इन्होंने मुझे यही कह के यहाँ लेके आए थे कि सर आपका जो हमारा ना डिपार्टमेंट का जो आई एम सॉरी ये लाइटर नोट पे बोल रहा हूँ इन्होंने कहा था सर कि ऐसा है कि हमारा ये पेड वर्जन जो है हमारे पास टाइम है एक पर्टिकुलर टाइम आई मीन आई एम नॉट शाइंग अवे फ्रॉम द क्वेश्चन प्लीज वो तो Okay, this आपकी question is limitation. by one of the students. He said with Yes, the please. lockdown and distancing measures being adopted, would this act as a catalyst in research towards digital payment mechanisms and cashless economy? Oh yes, absolutely. ये तो ऑलरेडी बिग थिंग दिस इज हाई टाइम सर अगर आप इस एरिया में रिसर्च कर रहे हो तो इससे बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं डिजिटल पेमेंट और ये जो फियर हो गया है फिजिकल करेंसी का राइट जो इसको अडॉप्शन का टाइम पीरियड था वो तो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया सर देयर आर सो मेनी पीपल सम ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइंड दे हैव नॉट टच्ड द फिजिकल करेंसी फॉर द मंथ्स नाउ दे आर नॉट यूजिंग फिजिकल करेंसी तो बाबा सारी एडॉप्शन की थ्योरी फेल हो गई इस कोरोना के सामने जितने भी आपके मॉडल्स थे एडॉप्शन के सब फेल हो गए दिस इज अनप्रेसिडेंटेड तो आई एम सॉरी क्या नाम बताया था किसने क्वेश्चन पूछा Ishan Joshi. ईशान जी इट्स हाई टाइम बिफोर समबडी एल्स कैप्चर योर आइडिया इससे पहले पब्लिश कर दीजिए आप राइट एंड यू शुड सीरियसली आई मीन ऑन अ सीरियस नोट यू शुड टेक इट अप this is going to be a very very important domain of research in coming days ईशान जी प्रॉब्लम तो अब ये आएगी आपको कि इतनी ज्यादा रिसर्च होगी कि आप कौन से वेरिएबल को स्टडी करना चाहोगे दैट वुड बी द चैलेंज बट देयर इज नो जैसे आपने क्वेश्चन बोला इमीडिएटली आई शुड नो डाउट अबाउट इट डिजिटलाइजेशन ऑनलाइन पेमेंट वॉलेट पेमेंट और उससे रिलेटेड साइबर क्राइम राइट बाकी इश्यूज उसका भी बहुत रिसर्च का स्कोप है Thank you, sir. Sir, there is one question: how the COVID data during the COVID period can be used as a control variable? कंट्रोल वेरिएबल के लिए फ्रेंड्स आपको ना ऐसा करना होता है कि एक तो आपको स्कोप ऑफ द स्टडी में जहां पे भी आप मेंशन करोगे वहां पे लिखना पड़ेगा कि जब मैं कोविड के कंटेक्स्ट में देख रहा हूं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि बाकी वेरिएबल फिक्स्ड है जैसे आप रिग्रेशन वगैरह में करते हो कोविड के कंटेक्स्ट में कंट्रोल वेरिएबल को आइसोलेट करने का तरीका यही है कि जितनी बेस्ट पॉसिबल जैसे जो होता है ना कि जैसे आप ये समझ लीजिए कि जब भी कोई फिनोमिनन हो रहा होता है सोशल साइंस में तो कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन हो रहा होता है तो जो वेरिएबल जो एक्सटर्नल वेरिएबल है जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो राइट उनको तो आपको करना पड़ेगा वो तो आपको डेटा क्लीनिंग के थ्रू होता है राइट पर जो वेरिएबल को आप नहीं कर सकते हो उनको आपको टेक्निक्स होती है जैसे हायरार्किकल रिग्रेशन वगैरह जो ये टूल्स एंड टेक्निक होते हैं दे गिव यू एन एम्पल अपॉर्चुनिटी टू कंट्रोल सर्टेन अदर वेरिएबल तो वो तो आपको डेटा को फ्रिच करना पड़ेगा एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि ये डेटा मेरा कोविड के टाइम का है इस टाइम से लेके इस टाइम का है इससे पहले का डेटा ये है इसके बाद का डेटा ये तो सारी रिसर्चेस में होता है जब आप OD1 का इम्पैक्ट देखते हो तब भी आप उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का देखते हो उसके पीछे का उसके बाद का ये तो सारी रिसर्च में होता है वो आपको आइसोलेट करना पड़ेगा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा जैसे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ऑटोमोबाइल्स की सेल्स जो है सर लिटरली मतलब जीरो है राइट तो अब ये कोई ये कहे कि ये प्योरली कोविड की वजह से हुआ तो ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन होगा और लार्जली कोविड की वजह से हुआ जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ मेरे एक फ्रेंड बता रहे थे कि नंबर ऑफ डेथ्स बड़ा प्लेजेंट और अनप्लेजेंट एग्जांपल है बट आई एम श्योर यू विल पेशेंस विद मी नंबर ऑफ डेथ मुंबई के एक पर्टिकुलर क्रिमेशन ग्राउंड पे या फ्यूनरल के केसेस उन्होंने रिकॉर्ड करे 2018, 19 और 20 के एंड सरप्राइजिंगली और इंटरेस्टिंगली जो कि आप मान ही रहोगे कि नंबर ऑफ डेथ और नंबर ऑफ फ्यूनरल्स नंबर ऑफ क्रिमेशन के केसेस मई 2018 मई 2019 और मई 2020 में रिडक्शन है अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि ये रिडक्शन
जितनी डेथ कोरोना की वजह से हो रही थी और हो रही है, उससे बहुत ज्यादा लाइव्स हम बाकी की फैक्टर की वजह से बचा पा रहे हैं। जैसे रोड एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे, लाइफस्टाइल डिजीजेस का कम हो गया। पर इस बात को प्रूव करने के लिए कि ये सिर्फ कोरोना से हुआ, बहुत सारे कंट्रोल वेरिएबल भी आपको लेने पड़ेंगे। तो कंट्रोल वेरिएबल में आपको डिफाइन करना पड़ेगा इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल को आप कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सटर्नल को आपको नहीं कंट्रोल करना है। पर आपकी रिसर्च की वैलिडिटी तभी कहलाएगी, ईशान जी, नहीं ईशान ने नहीं, जिसने भी ये पूछा है। This question is by Anshika Agarwal. अंशिका जी, आपकी रिसर्च की वैलिडिटी तभी कहलाएगी जब आप कंट्रोल करेंगी। अदरवाइज आप स्कोप ऑफ द स्टडी में लिखिए, अदरवाइज आप लिमिटेशन ऑफ स्टडी में लिखिए। कोई बुराई नहीं है लिमिटेशन ऑफ स्टडी में लिखने की। आई एम श्योर अंशिका के क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया। Yes, thank you, sir. Sir, we are taking last two questions. One is regarding marketing. It is regarding how to collect data for luxury products in this particular phase. Luxury products for in the Luxury corona products. crisis. Yes, sir. This question is by Monica Sharma, Miss Monica Sharma. नहीं तो उसमें मोनिका जी से ये पूछ सकते हैं कि why she has pointed out only luxury product. इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो लग्जरी प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट कुछ दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट हो रहा है, या वो पीएचडी कर रही होंगी या रिसर्च कर रही होंगी। दोनों ही केस में मेरा आंसर तो फिर एक ही होने वाला है। लग्जरी प्रोडक्ट्स इज नो डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर प्रोडक्ट फॉर दैट मैटर। ज्यादा से ज्यादा ये है कि रादर मोनिका जी आपको तो चिंता नहीं होनी चाहिए। लग्जरी प्रोडक्ट्स प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में ऑनलाइन, राइट। हाँ, अगर ये रिसर्च हो रही होती रूरल कस्टमर के लिए तो आपका फियर थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग होता, क्योंकि लग्जरी प्रोडक्ट जो यूज कर रहे होंगे ऐसा माना जा सकता है, प्रीमाइस ऐसी होगी, वो जो ओवर आई थिंक बीच बीच में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा उससे डाइवर्ट हो रहा हूँ, बट मैं मोनिका जी के क्वेश्चन को इस तरह से आंसर करूंगा कि रादर लग्जरी प्रोडक्ट के कस्टमर्स जो होंगे वो तो ज्यादा टेक्स हेवी होने के, मतलब कॉमन सेंस ये कहता है, और ऑनलाइन यूज कर रहे होंगे, उनका वर्चुअल एक्सपीरियंस। अदरवाइज भी तो आप ऑनलाइन ही यूज कर रही थी मैडम, एक्सेप्ट आप जो इंटरव्यू ले रही होंगी वो फिजिकल ना लेके वर्चुअल ले लो, आप एफजीडी करा रही होंगी तो फिजिकल ना लेके वर्चुअल एफजीडी करा लो, आप आईडीआईज करा रही थी, इनडेप्थ इंटरव्यूज करा रही थी तो वर्चुअल आईडीआईज करा लो, डेटा कलेक्शन वर्चुअल हो जाएगा। तो लग्जरी प्रोडक्ट्स में रादर मुझे तो पर्सनली इजियर लगता है। अगर उनका कोई और व्यू पॉइंट है तो आप उनको फिर चांस दे सकती हैं, तो मैं उसको काउंटर कर दूं। Monica ma'am, yes sir. Sir, there is one question by Lieutenant Swati Nigam. Please tell the process of minor or major projects, sir. अरे बाबा, आप लोग तो मुझे पूरा ही माइनर और मेजर। मैम जैसे एक तो मैंने अभी अनाउंस किया था कि जैसे बताया था ना कि जैसे कल ही मुझे किसी ने बताया कि आईसीएसआर ने अभी अपनी वेबसाइट पे ये एक प्रपोजल डाल रखा है कि आपको कोरोना से रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रोजेक्ट आप करना चाहते हैं तो 8 to 12 मंथ का ड्यूरेशन का प्रोजेक्ट आपको फंडिंग वो दे देगी, राइट। तो मैम वो आप देख लीजिए, उनकी वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है। आप यूजीसी की वेबसाइट पे चले जाइए, वहां पर अवेलेबल है। आप डीएसटी की वेबसाइट पे चले जाइए, वो सारी कंपनीज आजकल रिसर्च करवा रही है, उस पर चले जाइए। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट का थिंक टैंक है वो भी आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जैसे बाकी एमएचआरडी की कुछ स्कीम्स होती है, स्पार्क करके एक स्कीम होती है, आप वो रिट्रीव करिए। इसी तरह से आईसीएसआर की भी बहुत सारी स्पेसिफिक स्कीम भी होती है, अभी मैं इमीडिएटली नाम बोल रहा हूँ, शायद एक स्कीम है इम्प्रेस, IMPRESS, इम्प्रेस स्कीम है। तो ये तो स्कीम जो है आपके बहुत डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ रही है, बहुत सारे कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ रही है, और आने वाले टाइम में बहुत आने वाली है, और बहुत सारी कंपनीज अब स्पॉन्सर करेगी, क्योंकि दे आर ऑल्सो फ्राइटेंड, वो भी रिसर्च को करेगी। तो मैम बहुत सारे स्वाति मैम बहुत सारे फोरम है जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये चीजें तो वो थी जो इंस्टेंटनेसली मेरे ध्यान में आई। बहुत सारी इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज भी ऑफर कर रही है।
Thank you, sir. So one last question, though we have many, but this one is the last one. This question is by Mohammed Shehnawaz. He's saying that don't you think that longitudinal design of study will largely overshadow other designs post-pandemic? If so, then what do you suggest for relevance and use of other designs? Well, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इनफैक्ट popularity of longitudinal design would not come at the cost of other research, other design. So क्या नाम बताया था मैं भूल गया. Mohammed Shehnawaz. अच्छा, मोहम्मद शहनवाज. मिस्टर शहनवाज, आप ये क्यों मान रहे हैं? मतलब आप इसको ऐसे मत देखिए कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन जो हो जाएंगी वो बाकी रिसर्च डिजाइन पे मतलब उसका पूरा फोकस शिफ्ट हो जाएगा. ऐसा नहीं है. इनफैक्ट अगर मैंने ऐसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी है तो आई अपोलोजाइज. ऐसा मैंने बिल्कुल प्रोजेक्ट करने की कोशिश नहीं करी है. मैंने ये कहा कि, और जो आप भी मान रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन रेलेवेंस तब ज्यादा हो जाएगी. मेरे स्टेटमेंट को ऐसे समझिए, जब आप इम्पैक्ट वर्ड देख रहे होंगे. पर अगर सिर्फ कोई पोस्ट कोविड ही देखना चाह रहा हो तो क्रॉस सेक्शनल करेगा. वो कोविड के एरा के बाद करना चाह रहा होगा, क्रॉस सेक्शनल करेगा. और हर रिसर्च डिजाइन की अपनी रेलेवेंस रहेगी सर, ऐसा नहीं है. और प्लीज अंडरस्टैंड, जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन की डीमेरिट होगी वो क्रॉस सेक्शनल की मेरिट होगी. जो क्रॉस सेक्शनल की मेरिट होगी वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च की डीमेरिट होगी. तो कुछ एब्सोल्यूट एडवांटेज किसी भी टेक्निक का नहीं होता है. प्लीज थोड़ा सा समझिए मिस्टर शेहनवाज. ऐसा नहीं है कि लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन की अपनी लिमिटेशन नहीं होगी, उसकी अपनी लिमिटेशन है. राइट. लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन में अगर आप मार्केटिंग में कर रहे हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेरा परसेप्शन वैसे ही चेंज हो जाता है. आपको मेरा एज ए स्पीकर लेके क्या परसेप्शन था इस सेमिनार से पहले अलग था. अब आप प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट जो है, अगर आप ये लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन ले रहे हो तो हो सकता है कि मेरे लेक्चर की वजह से नहीं, कोई एक्सटर्नल इवेंट ही ऐसी हो गई जिसकी वजह से आपका परसेप्शन चेंज हो गया. तो देयरफॉर लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन पॉपुलर होगी, इसमें कोई शक नहीं है. पर ऐसा नहीं है कि दूसरी डिजाइन कम पॉपुलर होगी, वो भी रेलेवेंट रहेगी. और ये भी तो हो सकता है, किसने सोचा था कि कोरोना आ जाएगा? तो कौन ये सोच सकता है कि कोरोना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चला भी जाए? ह्यूमन मेमोरी इतनी शॉर्ट है सर. 2021 में हम ये बोलेंगे कि यस वंस अपॉन ए टाइम ऐसी एक कोई इन्फेक्शियस डिजीज हुई थी और एक घटना बन के रह जाए. हो सकता है ये क्वेश्चन ही रिलेवेंट हो जाए. तो कुछ भी शॉर्ट कहने के लिए बड़ा मुश्किल है. टाइम बीइंग यस, बट अदर टेक्निक वुड बी लेस यूजफुल. I don't think so. Thank you so much, sir, for patiently answering all the questions. We all have got new insights and new perspectives. Thank you so much. Over to you, Supriya ma'am. Thank you so much, Ms. Harmanpreet Kaur. And I also want to thank sir. He's a busy man. Still, he took all the questions with so much patience. And I hope that the query of all the participants have been answered by sir. May I now formally invite the convener of this webinar, Dr. Rajinder Singh sir, to please deliver the vote of thanks. Just 1 minute, Supriya. One thing is, I would like to clarify the notion of being BG and not BG has been totally abolished in the Corona time. So everyone is BG and everyone is free. So that's the one thing. And before you formally go to this thing, I must appreciate the participant. I'm still seeing that a lot of people still want an answer for the question. I sincerely apologize that I'm not able to answer their query, but by one or other way, you are connected with us. So please do write to us, not an issue. And I'm extremely thankful to all the team which I could see on the screen, right? And for considering me worthwhile to address the question and to give my viewpoint. And they respected my viewpoint. So thanks to all participants and the panel. Thank you very much.
Thank you so much, sir. May I now request Rajinder sir to please deliver vote of thanks? Thank you very much, Supriya. Am I audible? Yes, sir. Okay. My greetings to everyone once and again. I would like to take this opportunity to thank everyone who contributed in successful organization of this webinar. First of all, I express my gratitude towards the speaker, Dr. H.K. Dangiji, for his wonderful session. Sir, thank you very much for sharing your knowledge with us. We are very grateful that you accepted our request and spared some time for us from your busy schedule. I would like to thank our principal, Dr. Shivkumar Sahdev, for his continuous support and for allowing us to organize this webinar. Sir, you have always been a source of motivation for us. I'm also thankful to Dr. Rashmi Vardhan, convener IQSC, for her support and cooperation. I would like to thank all the participants for showing interest and attending this webinar. I hope the session was useful and up to your expectations. I'm very thankful to Dr. Chavi Sharma, Harmanpreet, Supriya, Shweta, Manisha, and other colleagues from Commerce Department for their efforts and help in organizing this webinar. Last but not least, thanks to our lovely students, Eshika, Ashna, Yash, Vankush, and Mandeep for their invaluable help in the preparation of this webinar. Once again, thank you very much, each and everyone. Thank you very much. Supriya. Thank you Thank so you. much, sir. So all the participants who are there, some of you are asking for the feedback form. We will be sending that again, and this link we'll close that link by 1 p.m. So there's 20 minutes left. You all are requested to fill that feedback form. And I can see Dangi sir still there. So thank you so much from the whole team. Seriously, this was one of the best webinar I've attended in last few days, especially this topic of research, which you have covered in such an interesting manner. Thank you so much, sir. Thank you once again from the whole team and from my side as well. Thank you, sir. Thank you so much. That's so generous of you. Thank you very much and good luck. Thank you so much. Thank you, sir. Okay, sir. The participants are here. Those who have filled the feedback form, they are requested to leave. Others who are still facing the issue with the feedback form, kindly stay back. We are sharing the link again to everybody. You can copy it from here and you can just fill the feedback form. I've just now shared the link. All of you, please, those of you who have not filled it, please fill it. This will only ensure your attendance for today. And those who have filled it are requested to leave the group. Some of you are requesting to share the link in the WhatsApp group. We are really sorry. We cannot share the link on the WhatsApp group. We have shared it right here for you. So please ensure that you fill this feedback form from this particular link, which is provided here. Those who are in charge of recording are requested to please stop the recording now, as we are done with the event. We are just